Hello students, now we start with the second session of the unit second polynomial. In the last session what we have discussed, the geometrical meaning of zeros of polynomial, in which what we have decides that by observing the curve of a polynomial, how to determine the zeros of linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Now we discuss in the second exercise zeros of quadratic polynomial and zeros of cubic polynomial and find the relationship between the zeros and coefficient of a polynomial. What we have first, we determine the zeros of quadratic polynomial and zeros of cubic polynomial and find the relationship between zeros of polynomial and its coefficients. Okay, so zeros of quadratic now, as you know that the general equation of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0. Okay. Now, if, as we know that the zeros of quadratic polynomials are 2, if alpha and beta are two zeros of quadratic polynomial, हमने क्या कंसीडर किया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं, अल्फा एंड बीटा. ठीक है. नाउ दिस a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x and c is what, that is a constant. So how to determine the zeros of quadratic polynomial? So we can find the zeros of quadratic polynomial by a method named as middle term splitting. किसे कैलकुलेट करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. एज यू नो द मेथड मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px is equals to x square plus 7x plus 12. This is polynomial is x square plus 7x plus 10. Now the coefficient of x square is 1. That is a. Coefficient of x, that is b, and that is equals to 7. And constant term, that is c, is 12. Now first we determine the zeros of quadratic polynomial. दो zeros होंगे, first is alpha, second is beta. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैलकुलेट करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं? इस मिडिल टर्म को क्या करते हैं? दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं, so that their addition or difference comes equals to middle term, that is a 7x, and their product comes the product of first term and third term. मतलब इस 7x को इस तरीके से दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे कि उन दोनों टर्म्स का एडिशन या डिफरेंस क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म, यानी 7x आना चाहिए और प्लस 7x, और उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 12x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 12x स्क्वायर. सो 7x का स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगा? 4x एंड 3x. क्या हो जाएगा? 4x एंड 3x. ठीक है. तो px क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, x कॉमन, x प्लस 4, 3 कॉमन, x प्लस 4, so x plus 4, x plus 3. These are the two factors of the quadratic polynomial. अब हमें क्या करना है? zeros find out करने हैं.
तो कैसे करेंगे? नाउ zeros is the value of x for which the given polynomial becomes 0. तो ये जो फैक्टर्स आए हैं उन दोनों फैक्टर्स को हम क्या कर लेंगे? 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो दो फैक्टर्स क्या आए हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? px is equals to x plus 4 x plus 3 आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल था x. We are doing as we know that factor of this given polynomial x square plus 7x plus 12 is x plus 4 x plus 3. Now as we know that the zeros of polynomial is what? The value of x for which the polynomial becomes 0. तो ये जो factors आए हैं इनको equals to 0 कर देंगे. So either x plus 4 is 0 or either x plus 3 is 0. So x plus 4 is 0 तो x की वैल्यू हो गई -4 and x plus 3 is 0 तो x की वैल्यू हो गई -3. तो एक 0 हो गया ये और एक 0 हो गया ये. So that 0 we have taken alpha, that 0 is we have taken beta. तो alpha की वैल्यू हमने क्या लेगी? -4. बीटा की वैल्यू हमने क्या लेगी? -3. So these are the zeros of quadratic polynomial which we have determined by using method middle term splitting. किससे कैलकुलेट किया? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैलकुलेट. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? दैट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial. ठीक है. अब सपोज हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा. क्या है? अल्फा और बीटा. हमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स. ठीक है. तो हम दो पैरामीटर यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा. दो जीरो हैं तो इनका सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा. एंड दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b बाय. क्या है? Sum of zeros is equals to alpha plus beta and that is equals to -b by a. Now what is minus? B is what? That is coefficient of x divided by coefficient of x square. And next term is product of zeros. That is alpha beta and alpha beta is c by a. Alpha beta is c by a and now c is what? Constant term divided by a क्या है? Coefficient of x. क्या है? Constant term divided by coefficient of x square. So that is the relationship between the zeros and coefficient of quadratic polynomial. Sum of 0 is alpha plus beta, product of 0 is alpha beta. ठीक है. जैसे सपोज अभी वही सेम ये जो हमने लॉजिक जो डेवलप किया है वो लॉजिक हम प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करें. हमारा पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और इसके जीरोस आए थे. अल्फा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू -3. सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -4 प्लस -3 -7 एंड अल्फा बीटा दैट इज -4 into -3 that is 12. Now we are verifying this logic. अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं. वेरिफिकेशन क्या है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज -b by a. यदि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px is equals to ax square plus bx plus c. हमारा यहाँ गिवन पॉलिनोमियल क्या है? px is equals to x square plus 7x plus 12. तो अब कंपेयरिंग करें स्टैंडर्ड फॉर्म से और गिवन फॉर्म से. गिवन पॉलिनोमियल तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 12 है.
ठीक है, तो अब हमने जो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके वो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा क्या कैलकुलेट करी -7, इसको वेरीफाई कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू 1, ये क्या हो गई -7। तो देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये वेरिफिकेशन। ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू क्या है 12 और a की वैल्यू 1, तो 12। तो देखिए अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट जो कैलकुलेट किया इंडिविजुअली हम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट भी 12 आया, और इससे जो हमने रिलेशन बोला है उस रिलेशन से इसको वेरीफाई भी किया, तो वो भी वैल्यू क्या आ रही है 12। सो दैट इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। इज दैट क्लियर? नाउ we are taking one more example of this variety कि question is what you have given a quadratic polynomial, you just find its zeros by a method named middle term splitting. After finding the zeros you just find a relationship between zeros and its coefficients. So px is 6x square minus x minus 2। ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और उन जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उनका उसके कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन बनाना, फाइंड आउट करना और उसको वेरीफाई करना। सो px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो अब ये जो मिडिल टर्म है माइनस x, इसको इस तरीके से दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे दैट प्रोडक्ट कम्स -12। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -12। सो px इज 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। क्या आया 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस, ठीक है, तो -4 और +3 -x हो गया, और -4 इंटू +3 क्या हो गया -12। अब फैक्टराइजेशन करें इन दोनों पार्ट में से कॉमन लें, 2x कॉमन लिया, 3x -2, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा 3x -2। सो वन फैक्टर इज 3x -2, अनदर फैक्टर इज 2x + 1। Now we are interested to find the zeros of polynomial. So put the value of px is equals to 0. Zeros of polynomial is the value of x for which the given polynomial becomes 0. तो ये हो गया 3x - 2, 2x + 1 is equals to 0. So 3x - 2 is 0 और 2x + 1 is equals to 0. तो 3x is equals to 2, तो x की वैल्यू हो गई 2/3, और 2x is equals to -1, तो x की वैल्यू हो गई -1/3। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3, बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और फिर उनको वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा है 2/3, बीटा है -1/2। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस, तो क्या आया 2/3 - 1/2, एलसीएम 6 लिया तो हो गया 4 - 3 1/6। एंड अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये हो गया 2/3 into -1/2 दैट इज -2/6, या 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -1/3, सम ऑफ जीरोस आया 1/6। नाउ वी आर वेरीफाई द relationship between zeros and its coefficient. Now as we know that
given polynomial is 6x square minus x minus 2. Now compare it with the standard form. Standard form क्या है? ax square plus bx plus c. तो a की वैल्यू क्या हो गई? दोनों को कंपेयर किया 6, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2. ठीक है. Now sum of zeros, that is alpha plus beta, and that is minus b by b. तो हो गया -1 बाय 6. ठीक है, b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 6 है. ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. ये 1/6. अब जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके सम कैलकुलेट किया था वो, और ये जो रिलेशन से हमने कैलकुलेट किया सेम आ रहा है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा इज c बाई a. c की वैल्यू है -2 बाय a की वैल्यू है 6. तो हो गया -1/3. So that 1/3 is same as this 1/3. So that is your product of zeros and sum of zeros. And we just find a relationship or verification between the sum of zeros and product of zeros, or relationship between zeros and its coefficients. Is that clear? Now second variety in quadratic polynomial. Suppose आपको quadratic polynomial, जैसे फर्स्ट वैरायटी क्या था कि quadratic polynomial given था, और on the basis of that you just verify, you just first find out their zeros and find the relationship between the zeros and its coefficients. अब सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है? टाइप सेकेंड क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस दे रखे हैं, या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और उस बेसिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. क्या करना है? फाइंड आउट करना. आपको क्या दिया है? आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, या फिर वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, और उसके बेसिस पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है? फाइंड आउट करना. जैसे सपोज इफ आई एम सेइंग दैट माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, एंड इट्स जीरोस आर इफ अल्फा एंड बीटा. सो बाय फैक्टर थ्योरम, यदि मैं इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसको फैक्टराइज करूं, तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा. क्या होंगे? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. तो यदि मैं इस पॉलिनोमियल को लिखूं bx इज इक्वल्स टू, तो दैट इज k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा. तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros. So that is the required quadratic polynomial. मतलब सपोज आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हो, या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो उसके बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. So that is a second variety of question. Ask this quadratic polynomial. जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया find a quadratic polynomial
whose sum and product of zeros are 1/4 and -1. क्या दिया है? Find the quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are 1/4 and -1. सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिया है? माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि लेट्स सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या है? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये आपको अल्फा बीटा दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप के हिसाब से हमने क्या लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा? माइनस 1/4/1 माइनस बी बाय ए। तो इसको कैसे लिखा? माइनस, देखिए आपको सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। तो आपने क्या लिखा? इसको 1, आपको ये वैल्यू क्या दे रखी है? 1 से आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा इज 1/4। ठीक है, और एज वी नो दैट इज माइनस बी बाई ए। रिलेशनशिप के हिसाब से क्या होता है? 1/b बाई ए। तो इसको कैसे लिखा? 1/4/1। और जब इसको मैं कंपेयर करूं, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज -1। दैट इज व्हेन वी कंपेयर दिस विद अ स्टैंडर्ड रिलेशन c बाई ए। तो देखिए अब इन दोनों रिलेशन को मैं यदि कंपेयर करूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दैट माइनस बी बाई ए इज 1/4/1 और c बाई ए इज -1/1। तो कंपेयर किया तो इन दोनों को कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या आ रही है? 1, b की वैल्यू -1/4 और c की वैल्यू क्या आ रही है? c की वैल्यू आ रही है -1। c की वैल्यू क्या आ रही है? -1। ठीक है, तो ये आपका सो योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px is ax square plus bx plus c। तो a की वैल्यू 1 x स्क्वायर, b की वैल्यू -1/4x प्लस c -1। ये हो गया x स्क्वायर माइनस x/4 -1। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x -1। That is your required polynomial. अब हमने जो लास्ट रिलेशन डिराइव किया था कि px क्या हो जाएगा? डायरेक्ट px इज k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो वहां से भी सेम रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4, सॉरी सम ऑफ जीरोस 1/4 और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है? 1, सॉरी -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। पहले तो आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जो रिलेशन है -b बाई ए एंड c बाई ए, उससे a b c की वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। दूसरा सेकेंड मेथड है कि
हमने जो डिराइव किया था कि यदि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है या फिर जीरोस गिवन है तो आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा k is equal k into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। तो ये हो जाएगा px is k x square alpha beta is plus sorry minus, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x square minus x minus ये आपका px है। So that is your required polynomial। Is it clear? So that is the second variety of question in the quadratic polynomial। फर्स्ट वैरायटी हमने डिस्कस करी जिसमें सम ऑफ जीरोस जिसमें आपने क्या कैलकुलेट किए, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए और फिर उन जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। सेकंड वैरायटी की आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपने क्या कैलकुलेट किया, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया। Is that clear? We are doing one more question related to the second variety. Now question is what? Find a quadratic polynomial whose sum and the product of zeros are root 2 and 1 by 3। Sum of zeros आपको क्या दे रखा है, root 2 and product of zeros आपको क्या दे रखा है 1 by 3। अब मैंने दोनों टेक्निक्स आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करी थी वैसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज माइनस बी बाय ए, दैट गिवन इज रूट 2 बाय 1, ठीक है। रूट 2 था तो उसको लिख दिया रूट 2 बाय 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए। सो हाउ टू राइट दिस सी अल्फा बीटा, 1 बाय 3 बाय 1, 1 by 3 by 1। तो अब देखिए इस इक्वेशन 1 और ये इस इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें तो देखिए इसमें और इससे कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस रूट 2 आ रही है और सी की वैल्यू 1 by 3 आ रही है। ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको पूरा के पूरे पार्ट को हमने क्या बना दिया, सी बना, ठीक है। नाउ अब तीनों कोएफिशिएंट्स आ गए, a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x और c is a constant term। Now as you know that our quadratic polynomial in the standard form is ax square plus bx plus c। तो ये हो गया x square minus root 2x plus 1 by 3, ठीक है। ये आप कांस्टेंट टर्म है, आज मल्टीप्लाई कर दे, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डायरेक्ट फॉर्मेट में यदि आपको इसको करना है तो एज वी नो दैट डायरेक्ट क्या है, px इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा। ये डायरेक्ट आपका 1 मार्कर के अंदर सीधा डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा रूट 2x, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है रूट 2 और अल्फा बीटा क्या हो गया 1 by 2। So x square minus root 2x plus 1 by 2। ये नॉर्मली के प्रोडक्ट में रहता है तो ये के। So these two variety of questions given an exercise 2.2, ठीक है। 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें यही फर्स्ट दो वैरायटी के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए वही हैं। इसमें और भी डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं तो वो हम लेटर सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।